So, good morning, good afternoon, good evening to all of you who have joined in for this session. I say that because we are on day two of the Rise Pico World Summit, and we have people joining in from across the world. At last count, we had participants from more than 80 countries part of this whole session, and I'm very excited to actually be a part of this particular session because I think, like all of you, I'm a huge music buff, and this is one session which I was looking forward to for a very long time. So, welcome to all of you. My name is Naresh Karmalkar. I'm the advisory board member of the RISE Summit. Been so for the last 11, 12 years now. And it's amazing the kind of people and the kind of sessions we have managed to get together. So, welcome once again for what I think is going to be an amazing couple of hours of music. Well, as you can see, the session has been very intriguingly titled Mindful or Mindful Consumption of Entertainment. So that itself is going to give you an idea as to what this session is all about. It's not going to be a usual session. And it is my immense pleasure and privilege to actually introduce the resource person who's going to be leading us through this workshop. She's none other than Kalpana Swami. And I will read out her bio to you, and you will understand why it's going to be worth your while to sit through this session and enjoy it, which I'm sure you will. So Kalpana is a seasoned communications professional with over 15 years of experience. She currently curates a Zoom-based weekly show, Musically, that's spelled Musicalli, by the way. So that itself is different, okay? Under Nostalgiana, that appreciates goodness in film music since 1985. Her love and penchant for research and exploring hidden gems in films and music has created a niche for Musically in the last 3.5 years. Prior to this, in a corporate avatar, she has worked extensively with leading PR and ad agencies and has had a stint with Big FM in their corporate communications department. She has been a co-author for the book Guide the Film Perspectives. Her research inputs have been credited in the authorized biography on Shankar Mahadevan by Ashish Ghatak, recently released. That is Kalpana Swami to you, our resource person for this evening. And what can I say? I said just like, fasten your seat belts because you're in for a rollicking ride. So let's go ahead. Kalpana, the floor is yours. Thank you so much, Naresh. Such intro gives a little more responsibility to go a little more, seriously into it. But as I said, हम अपने entertainment को भी बहुत seriously लेते हैं. So इसलिए thank you so much everyone for joining in. And as I said, if you still are expecting or if you want more people to join in, just go and give them a buzz as we start. I'm just going to start the screen share. So Kalpana, while you are doing that, let me just give a couple of housekeeping instructions. This is it's a workshop mode here. We would like you, however, if possible, keep your cameras on. I'm not too sure whether that works here, but the chat is something we would like to love to see buzz. So keep putting your any kind of comments, suggestions, whatever you feel like. Once Kalpana starts, let's keep the chat alive. At the end, Kalpana, I think we're going to try and get a couple of Q&A. We put a stop session in, and everybody's chance to get in. Okay, Kalpana, I won't. I'm getting out of the scene. Thank you so much. Thanks, Naresh. Okay. Mindful or mindful. कहने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे कुछ एक jargon लगा देना, but in last couple of years, especially after lockdown, हमने बहुत सारी चीजों को अलग तरीके से, अलग नजरिए से देखना शुरू किया है. और while everybody is talking about हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, of course there's so much to be thought about. There are so many sectors, so many industries we need to look into. One thing which is very important to keep our sanity and which is very important to be led with responsibility is entertainment. And entertainment itself is a huge gamut. हम उसको एक session में तो definitely नहीं cover कर सकते. So we thought, let's stick to one agenda
which is most commonly available and most commonly loved by all, which is music. आप संगीतज्ञ होना जरूरी नहीं है, या फिर आप बहुत पढ़े लिखे म्यूजिकल स्कॉलर होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप में थोड़ी सी अगर आपका दिल और दिमाग और आपके जज्बात आपके साथ हैं, तो संगीत आपके साथ जरूर है. तो अगर हम आगे बढ़ें एंड okay, so just to give you a brief introduction of what Musically is all about. Musically is an initiative that was created 3.5 years back from the parent brand, which is Nostalgiana. Now ये हमारा जो project है, ये lockdown का project ही है, and that is when we realized the importance of this community that we were about to create and we are in the process of creating. लॉकडाउन में एक छोटी सी मुहिम शुरू की थी कि लोगों को एंटरटेन रखेंगे. Cerebrally, we'll keep everyone engaged, not just mindless, chit chat or mindless songs playing alone, but giving film music respect of art. अब आप पूछेंगे भाई कि ये क्या बात होती है. यार पता है क्या होता है ना, कि जब हम म्यूजिक बोलते हैं तो जो प्योरेस्ट कल्चर है ना, उनको लगता है कि ये क्लासिकल हो सकता है या गजल हो सकता है या किसी एक पर्टिकुलर जॉनर का हो सकता है. बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात है. कोई एक जॉनर अपने दिल से पकड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन एक ऐसा जॉनर जो सबको बांधे रखता है वो है फिल्म म्यूजिक. अब अगर हम फिल्म म्यूजिक की बात करें तो हर कोई कहेंगे क्या है. तो चलिए, अगर हम बोलते हैं फिल्म म्यूजिक ही तो है, तो एक छोटा सा गेम खेलते हैं, है ना. और इस गेम में हम बस ये करेंगे कि अनफॉर्चुनेटली शायद मैं अभी चैट्स ना देख पाऊं. अगर नहीं भी देख पाऊं तो डोंट वरी, आप अपने जवाब देते रहिए. ओके, यहाँ पे मैं कुछ धुनें बजाऊंगी और आप बस मुझे चैट पे डालिए आप वो धुनों को पहचानते हैं या फिर ऐसी क्या बात है उन धुनों में. ये पहला था. चलिए कुछ और धुनें सुनते हैं. कुछ अपनी सी लगी, राइट? कुछ पहचानी हुई सी धुन लगी. चलिए आखिरी दो धुनें सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं.
एंड ये वाली तो धुन ऐसी है जो मुझे पता है सब जानते होंगे। बहुत पहचानी हुई धुनें थी, राइट? तो क्या है, फिल्म म्यूजिक ही तो है, चलेगा। बट द फैक्ट रिमेन्स कि जो अभी हमने धुनें सुनी उसमें कोई गाना नहीं था, किसी की आवाज नहीं थी, लेकिन फिर भी it binds us all. So a thread which is so important and so vast कि एक इंडियन, भले ही वो आप इंडिया में हो या किसी भी कंट्री में हो, कुछ धुनें जब हमारे कानों में पड़ती है वो हमें अपनी सी लगती है। उसके लिए आपको संगीत का ज्ञाता होने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको कोई बहुत भारी पढ़ाई नहीं करनी पड़ रही है, लेकिन इस धागे को जब हम साथ में पिरोते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि यार फिल्म म्यूजिक सिर्फ फिल्म म्यूजिक ही है क्या? नहीं, अनफॉर्चुनेटली हम इसको सीरियसली नहीं लेते। लेकिन अगर हम इसको आगे थोड़ा सोचें कि it has so much of everything in it, right? There is a bit of literature, there is a bit of commerce, there's a bit of art and so many things. तो हमारा जो मेन उद्देश्य रहा है हमेशा, वो यही रहा है कि इन फिल्म म्यूजिक को आप तक या फिर सारे पेट्रन्स तक ऐसे पहुंचाएं कि वो इनको इनके एक्चुअल तरीके से म्यूजिकलिटी के लिए इनको अप्रिशिएट कर सकें। तो how do you get into the mindful enjoyment of music? And that happens with a very this is also a term coined by us, I guess, या फिर this is a very loosely based term, but it's high time we get into the nitty-gritties of it, which is guided listening format. क्या होती है ये guided listening format? देखो, अभी हम पूरे सेशन में बहुत सारे गाने सुनने वाले, और पिछले भी जो हमने गाने, अभी जो हमने धुनें सुनी, उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे धुनें हो सकती है आपने पहले कई बार सुनी हुई हो, लेकिन क्या हमने उन गानों को, उन धुनों को उनकी म्यूजिकलिटी के लिए जाना है, या फिर हमें वो स्क्रीन पे वो एक्टर्स अच्छे लगते हैं, या फिर हमें कुछ उनके ऊपर जो गॉसिप्स, जो अच्छा आपको पता है वाले जो ट्रिवियाज चलते हैं हर जगह, उसकी वजह से हमें वो पता है? तो कहने का मतलब ये कि हमारे कानों में क्या पड़ रहा है, वो वहां से प्रोसेस होके हमारे दिमाग पर क्या असर करता है और हमारे दिल पर क्या असर करता है, उसको हमें फोकस देना चाहिए। एंड हाउ डू वी डू दैट? चलिए, लेट्स फिगर इट आउट। मैं एक स्लाइड दिखाऊंगी जिसको कि हम बाद में एलैबोरेट करेंगे, which is it's just a 5-pointer thing that we want you to focus on. Listen, not just hear. Do not confuse visuals with melody. Pay attention to the lyrics, which is the most important thing, and let emotions flow. And eventually, we will figure out how every song has a personal story. You know? So, I'm not able to see the chats here, but yeah. Okay, great. So people are contributing and people are chatting, and I'm thankful for that. Thank you so much. So I'll not disturb the flow. But आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ चीज जरूर देखनी है कि Indian film industry has been जब हम बाहर कहीं जाते हैं या फिर जब हम बॉलीवुड को डिस्क्राइब करते हैं तो कहते हैं बॉलीवुड इज ऑल अबाउट सॉन्ग एंड डांस, राइट? Of course it is, and we are so proud of it. That's what makes our song and dance so unique, because our song and dance has been in focus since 1940s or rather late 30s. अगर आप विंटेज गानों को एंजॉय करते हैं, अगर आप बहुत नायाब चीजों में भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो लेट 30s के बाद के भी गाने सुनिएगा, उनका एक अलग चार्म है। और इस ट्रेजर में बहुत सारे अनगिनत जो ना एंकर्स हैं, तो हर किसी को तो हम यहाँ पे फोकस नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, मैं चाहूंगी कि आप लोगों का ध्यान खींचूं कुछ ऐसे आर्टिस्ट की तरफ
जिन्होंने शुरुआत से लेकर आज तक के बहुत कंट्रीब्यूट किया है। और नाउ कई बार क्या होता है कि पीपल आर फेमस ओनली फॉर देयर पॉपुलैरिटी, बट उनके मेलोडिक वैल्यूज क्या है उसको जानना और उसको समझना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है व्हेन वी लुक एट इट। जस्ट से फॉर एग्जांपल दिस जेंटलमैन, ये है सी रामचंद्र। अब सी रामचंद्र जी की बात करें तो इनके लेट 40s और 50s का जो काम है वो बहुत नायाब रहा है, एंड रिमेम्बर ये हम बात कर रहे हैं इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के पहले देयर वाज आरसी बुराल, देयर वाज न्यू थिएटर्स, एंड ऑल दीज पीपल हैड बीन डूइंग ग्रेट वर्क। उनका काम भी बहुत बहुत उम्दा रहा है। तो दे हैड ऑलरेडी सेट अ बेंचमार्क, बट immediately after 1947 the world was changing, the dynamics was changing, and this gentleman had given us some very very interesting melodies to hum even today. जैसे अगर आप बात करें तो ये जिंदगी उसी की है। कोई भी रियलिटी शो ले लीजिए, आज की डेट में भी बच्चे गाते हैं इसको। क्योंकि उसकी जो उसका जो एक मेलोडिक वैल्यू है ना, दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है ये अगर हम पॉइंटर्स में डालें तो हम कह सकते हैं कि ही हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक टू इंडिया इन अ वेरी फ्यूजन वे। और क्लासिकल में तो ये थे ही। चलिए कुछ उनकी धुनें सुनते हैं जो शायद नायाब भी हैं और आपको एक ग्लिम्स देंगी उनके काम पे। तो लेट्स जस्ट लिसन टू दिस पीस। क्या कभी काली रतियां, कभी दिन सुहाने, किस्मत की बातें तो किस्मत ही जाने। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी। See, we associate C. Ramachandra with such कहते हैं ना वो serious songs and classical songs, but listen to his comedy version as well. ये जो हमने अभी गाना सुना ओ बेटा जी, अगर आप लोग को याद हो 3 साल पहले एक सीरीज आई थी लूडो, एक फिल्म आई थी सॉरी, उसमें इसको थीम बना के यूज किया गया था, and what a brilliant usage of that song and such a quirky मैनर। अब आगे बढ़े और इनकी अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जिनकी फोटो, इनकी अगर बात करें तो भाई क्या ही बात करें, मतलब हर दिल अजीज हैं। he has been instrumental, this is SD Burman साहब, and he has been instrumental in bringing so many innovations to Indian Hindi film songs। जैसे अगर हम बोले कि जो folk element था, especially the Bangla and the North Eastern folk, उसका जो इन्होंने इस्तेमाल किया है बेहद ही खूबसूरत। फिर अगर हम बात करें एसडी बर्मन की अगर हम बात करें तो इनका एक बहुत यूनिक स्टाइल है कि he has been disrupting the traditional मुखड़ा अंतरा फॉर्मेट many a times, और कई इनके ऐसे गाने हैं जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट को नहीं फॉलो करते। और हाँ, टैगोर को
कॉमन पार्लांस में इजीली लोगों तक वो धुनें पहुंचाने का काम इन्होंने बखूबी किया है। तो चलिए कुछ सुनते हैं इनकी शेड्स ऑफ मेलोडी। दिस इज अ टैगोर सॉन्ग ओरिजिनल। तेरे मेरे मिलन की ये रहना, ओ तेरे मेरे मिलन की ये रहना, नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, अभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। देखिए 3 धुनें हमने सुनी और तीनों कितनी अलग। पहली वाली जो थी फूलों के रंग से, there was no मुखड़ा अंतरा फॉर्मेट इन दैट, इट इज लाइक अ ब्लॉक सॉन्ग। एक ब्लॉक है, उसी को रिपीट कर करके 2-3 बार यूज किया है, स्टिल सो मेलोडियस। सेकेंड वन तेरे मेरे मिलन की ये रहना, अ वेरी पॉपुलर टैगोर सॉन्ग, जो दी तारो, आई डोंट नो द फॉर द लिरिक्स बट दैट्स द वन। उसको भी बाद में भी कई बार यूज किया गया है बाय द वे। एंड देन द थर्ड वन, जस्ट इमेजिन दिस इज अ सैड सॉन्ग, जाने वो कैसे लोग थे जिनको, did you notice there was no percussion instrument in that, there was only guitar, और पता है गिटार में क्या बज रहा था? Swing rhythm. Swing is a jazz form of rhythm and that was being played on guitar, ding takka diggity takka ding tak diggity tak, and that has been used as a sad song and that pierces your heart still in such a beautiful way. That is, you know, मतलब हम आगे भी और बहुत सारे examples देखेंगे, you know, that is where we want you to focus on. There is so much of innovation being done by these maestros. और अगर हम folk की बात करें, इनको तो कैसे हम भूल सकते हैं, ये है नौशाद अली जी, नौशाद जिनको हम जानते हैं। अगर हम folk की बात करें तो यूपी folk इन्होंने क्या बेहतरीन इस्तेमाल किया है, और इनकी जो रागदारी पर पकड़ रही है उसके भी क्या ही कहने। मतलब जहां हम नॉर्मल कभी जब हम रागदारियों की बात करते हैं तो सबसे पहले जो रागदारी हमारे दिमाग में आती है, राग यमन होगा या राग भूपाली होगा या भैरवी होगा या भैरव होगा। इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर रागों को, फिर वो भले ही मल्हार हो, सारंग हो या फिर हमीर या केदार हो, इन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज में इसको कॉमन लोगों के लिए फिल्म म्यूजिक के धागे में पिरोया है। चलिए कुछ सुनते हैं इनके। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। आज किसी की हार हुई है, आज किसी की जीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। सारे सगरे मग पम द पनि द सनि सारे सनि द पम प द नि सनि सनि द पम प ग म द प ग म द स मधुबन में राधिका नाचे रे, स स सनि द पम प द प ग म द सनि रे, स स द ग म ध नि द सा, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका।
ओते नादर दिरतानी ताधारे धीम धीम ताना ना नादर दिरतानी ताधारे धीम धीम ताना ना नादर दिरतानी ताधारे धीम धीम ताना नादर दिरतानी ताधारे ओते ताना धीर ताना धीर तुम धीर नादर तक तुम तिरकड़ ताधा ने नादर दिरता नीता ओदे नादर दिरता नीता ओदे नादर दिरता नीता धार धीम धीम ताना ना Wasn't that just amazing? I mean, पहला absolute UP folk. फिर अगर हम देखें बीच वाला जो गाना था जो फिल्म अंदाज से था, अगर हम उसको रागदारी में डालने की कोशिश करेंगे तो यू विल फाइंड द शेड्स ऑफ राग शिवरंजनी देयर, जो कि कितने गाने हमने राग शिवरंजनी में सुने हैं विच इमोट्स पैथोस मेलनकली, और आखिरी वाला तो हम सब जानते ही हैं, व्हाट अ जेम इट वाज फ्रॉम द मूवी कोहिनूर, जिसमें कि राग हमीर पर इतनी खूबसूरत बंदिश बनाई गई है। वेल, ये तो है ही है। रागदारी और फोक की अगर हम बात करें तो ये जो आदमी है ना, इसने भी बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रखा है और कर रहे हैं। ये है अमित त्रिवेदी। अमित त्रिवेदी की अगर हम बात करें तो ही स्टार्टेड ऑफ एज अ पर्सन who brought EDM to a very different light. EDM मतलब electronically designed music. EDM हमारे कंट्री में पिछले 20 सालों से है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल मेरे को लगता है अभी कुछ 10, 11, 15 साल से ही ज्यादा अच्छे से होना शुरू हुआ है। अमित त्रिवेदी का जो स्टाइल है, स्टाइल ऑफ कंपोजिंग, he has made sure to bring the Gujarat and the Western folk in a very beautiful light. और इनकी भी अगर हम रागदारी की बात करें तो ही यूजेस राग्स इन अ वेरी इनोवेटिव वे। कैसे, चलिए देखते हैं। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर घाए हयो हाय हाय। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर घाए हयो हाय हाय। आसानी के लो बिखराए शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। देखो न बादल तेरे आंचल से बंद के आवारा न हो जाए जी। नहीं जी नहीं, कि बादल की आदत में तेरी शरारत नहीं। कि देखो न चंदा तेरी बिंदिया से मिलके कुआरा न रह जाए जी। नहीं जी नहीं, कि चंदा की फितरत में तेरी हिमाकत नहीं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं सवार लूं सवार लूं है सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज
इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, है सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। अब ये सुनिए कि ये जो गाने अभी आपने सुने, पहला वाला तो था, वो तो गुजरात फोक था। सेकंड वाला जो गाना था, दैट वाज फ्रॉम अ पीरियड सीरीज कॉल्ड जुबली। अब अमित त्रिवेदी ने इंटरेस्टिंगली एक ही साल में 2 अलग अलग पीरियड फिल्मों में काम किया। एक थी कला और दूसरी थी जुबली। कला was 1930s and 20s. Jubilee was 1950s and late 40s till 60s. And still he was able to keep that bifurcation so well. The use of instrumentation. अभी जैसे इसमें हमने सुना नहीं जी नहीं के बीच में जो वो ट्रम्पेट आता है या फिर कैस्टनेट आता है या क्लैरिनेट आता है, which is so unique for that particular period. और ये जो हमारे जो दिग्गज हैं, ये उसी टाइम पे खेल रहे थे। Amit Trivedi had listened to these songs and he has imbibed it so well in his song. अब जो आखिरी गाना था संवार लूं, कहने के लिए हमने कई बार सुना है ये गाना, लेकिन क्या हमने कभी ये चीज ध्यान दी है कि this was actually a bihu song. उसका जो बीट था that was a झुमूर बीट, और यही बीट पता है कौन से गाने में, पुराने गाने में इस्तेमाल किया गया है, which is दया रे चढ़ गए ओ पापी ही बिछ हुआ. The same beat was used there. And यहाँ पे अगर आपने सुना होगा बीच में वो एक आवाज आती है धा धा टिक टा टा तिन, you know, with the vocals. That is a very typical of a jazz style scatting. Such innovation, so much work is being done. तो कहने का मतलब ये कि क्या जो अच्छे गाने बने हैं हम उन सबको सुन पाते हैं, या फिर we stick to only the songs which have been made to listen to us by the popular media. जैसे कि हमारे अगले आर्टिस्ट ये हैं रोशन साहब। अभी इंटरेस्टिंगली ये कुछ दिनों से ट्रेंड कर रहे हैं थैंक्स टू नेटफ्लिक्स की इनके ऊपर जो सीरीज आई है। बट यू नो द बेस्ट पार्ट इज इनको भी लोग सिर्फ वो एक गाने से ही जानते हैं, रहे ना रहे हम, या फिर एक या दो और जो पॉपुलर गाने हैं। बट इनका जो वॉल्यूम ऑफ वर्क है, इनका जो स्टाइल ऑफ कंपोजिंग है, हैज बीन सो वास्ट। अब जैसे यहाँ पर हम राग यमन के 2 गाने लेंगे और देखिए उन दोनों गानों में इन्होंने क्या कमाल किया है दोनों बहनों को लेकर। चलिए सुनते हैं। एक अनजान मुसाफिर से मुलाकात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। हाय जिस रात मेरे दिल ने धड़कना सीखा, शौक जज्बात ने सीने में भड़कना सीखा। मेरी तकदीर से निकले वही, मेरी तकदीर से निकली वही सदमात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। गरे ग नि रे म ग म नि रे ग गरे ग नि ग रे ग ग म म ग नि सा सा नि नि ध ध प प ग रे सा नि ध प म ग रे नि ध प म ग रे सा नि रे ग। मुलाकात आप हुई पैगाम दीजिए कि छुप छुप के आने को जी चाहता है और आके न जाने को जी चाहता है और आके न जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है।
राग एक ही है, शेड्स कितने अलग अलग हैं। एक कव्वाली, रोशन साहब की कव्वालियों की तो हाय हाय क्या बात ही क्या कहें। ये गाने हमने सुने हैं, लेकिन क्या हमने कभी उनको अप्रिशिएट जैसे करना है कर पाए हैं? नहीं शायद, या फिर अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे इन दोनों की बात करें, it's very easy to say 90s is equals to Nadeem Shravan. Of course it was Nadeem Shravan, yaar. They had brought back melody in such beautiful way. अगर हम ये बात, इस पे कोई डिबेट नहीं होगा, या फिर we are not here to say pros and cons. Yes, melody had tried to go out of window for some time in 80s, you know. लेकिन the way these two guys have brought back the melody in the foray has been amazing. जैसे वो जो 40 piece orchestra होता है ना, elaborate string section, खूब सारी violins की आवाज, खूब सारे acoustic instruments की आवाज, उसका जो इस्तेमाल इन दोनों ने किया है in the most beautiful way, उसको हम नकार नहीं सकते। हाँ, इनके कुछ रिदम पीसेस है, टिक 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 टिक, ऑफ कोर्स दिस इज देयर सिग्नेचर एंड व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, राइट? चलिए कुछ सुनते हैं इन्होंने हमारे इंडस्ट्री में क्या कंट्रीब्यूट किया है। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐसा नम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐसा नम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। संतूर कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया। पहले जो दो गाने हमने सुने, उनके दोनों की जो रिदम थी सेम थी, कहरवा ताल, विच इज धगिन तिनक दिन धग, बट दोनों में अगर आप एक साथ सुनेंगे तो आपको लगेगा कि दो अलग अलग रिदम्स है। और जो तीसरा हमने सुना, जो कि थोड़ा सा हिडन जेम टाइप का था, दैट इज ढिकचक ढिकचक ढिकचक, जिसको कहते हैं हम दत्तू ठेका। अब भाई दत्तू ठेका की एक बात तो मैं बताना जरूर चाहूंगी। दत्ताराम वाडकर जी एक असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर थे फॉर शंकर जयकिशन ट्रूप, और उन्होंने एक बार ये रिदम क्रिएट की थी 2 बीट्स, विच इज 1 2 1 2 1 2 1 2। वो इतनी पॉपुलर हो गई कि आज की डेट तक के उस रिदम को तो फिल्म म्यूजिक में ढाल के ऐसी मेलोडीज क्रिएट करना, ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कुछ तो जादू हो रहा है। और उन्होंने इनोवेशन के तो जैसे मतलब सारे पैरामीटर्स ही तोड़ दिए, जैसे कि ये सुनिए। ये सुनते से ठंडी लगना शुरू हो जाती है ना।
ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। तेरे होठों पे है हुस्न की बिजलियाँ, तेरे गालों पे है जुल्फ की बदलियाँ। तेरे दामन की खुशबू से महके चमन, संगमरमर के जैसा ये तेरा बदन। मेरी जाने जा, मैं तेरी चांदनी, तेरे बिन आज कोई प्यार की रागीनी। करिए ना करिए ना करिए ना हो करिए ना करिए ना करिए ना कोई वादा किसी से करिए ना करिए ना करिए ना कोई वादा किसी से करिए ना करिए करिए ओ करिए करिए तो वादा फिर तोड़िए ना तो वादा फिर तोड़िए ना तो वादा फिर तोड़िए ना। आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि ये बड़ा ही SD बर्मन स्टाइल का गाना है, ये बड़ा ही नौशाद स्टाइल का गाना है। ये आप कैसे पहचान सकते हैं? ये आप उसी समय पहचान सकते हैं जब आप उनको सुनेंगे, बहुत बहुत सुनेंगे। अब जैसे कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, उनका अपना एक स्टाइल होता है, जैसे कि ये लोग, इनका जो एक स्टाइल है ना, वो एक बहुत ही यूनिक स्टाइल है। जैसे अभी हमने रहमान का जो 3 गाने सुने, पहला वाला कश्मीर था और तीसरा वाला हिमाचल था। हाउ डिड दैट डिफरेंस कम? पहले वाले में आपको स्नो सुनाई देता है, स्नो दिखाई देता है, यू कैन विजुअलाइज इट। दूसरे वाले गाने में जो कि चंबल का गाना था, उसमें आपको चंबल की घाटियां दिखाई देती, चंबल नहीं, चंबा, नॉट चंबल, चंबा, हिमाचल, वहां की घाटियां दिखने लगती है, आपके दिमाग में वो कैप दिखने लगता है। That is the art and that is what makes these music directors so interesting and so innovative. अब जैसे शंकर एहसान लॉय की बात करें, इन्होंने ना एक बहुत कमाल काम किया है। वो ये, इनके पास ना जो तिकड़ी है, ये एक भयानक ही इंटेलिजेंट तिकड़ी है। शंकर महादेवन जी का जो क्लासिकल टच है वो आता है। एहसान नूरानी जो है वो एब्सोल्यूट अमेजिंग गिटारिस्ट है, तो वो जो रिदम का जो सेक्शन और जो वो एकदम जैज वाला जो फील है वो लेके आते हैं। एंड देन कम्स मेंडोंसा, लॉय मेंडोंसा, इनका एक अपना ही यूनिक स्टाइल है अरेंजमेंट का। तो ये क्या करते हैं, क्लासिकल बिट उठाते हैं, उसमें एक इनोवेशन डालते हैं, उसको एक इंटरनेशनल फील देते हैं एंड दे क्रिएट अ मेलोडी। अब जैसे ये जो गाना हम सुनेंगे, इनके जो 2-3 गाने हम सुनेंगे, आपको मैं बता दूं बहुत इंटरेस्टिंगली, ये जो पहला गाना हम इसमें सुनेंगे वो कथक का तोड़ा है। मतलब जो कथक जानते हैं या भरतनाट्यम जानते हैं वो जानते होंगे कि जब हम फुटवर्क करते हैं, फुटवर्क के टाइम पे एक रिदम बजती है, उसको हम बेस रिदम के जैसे यूज करते हैं, बेस मेलोडी के जैसे यूज करते हैं। उसको उन्होंने लिया और बना दिया एक क्या, रैप सॉन्ग। उसके बाद में जो 2 और गाने हैं उसको सुनिएगा, यू विल बी अमेज्ड एट द वर्क दे हैव बीन डूइंग। डूब जा मेरे प्यार में, डूब जा मेरे प्यार में, डूब जा मेरे प्यार में।
सरोद। बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। ऋतुओं को घर से निकलने तो दो, बोए थे मौसम खिलने तो दो। होठों की मुंडेर पे रुकी, मोतियों सी बात बोल दो। फीकी फीकी सी है जिंदगी, चीनी चीनी ख्वाब घोल दो। देखो ना बीत जाए ये लम्हे ये घड़ियां। बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। सुना आपने? कितना इनोवेटिव, कितना इंटरेस्टिंग। ऐसे अनगिनत जेम्स हैं हमारे इंडस्ट्री में जिन्होंने क्या बखूबी काम किया है। जयदेव साहब, सलिल चौधरी, आप नाम लीजिए, एंड देयर आर सो मेनी अदर। अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट बी प्लेइंग ऑल ऑफ देम हियर, बट एक नाम जिनका नाम लेना बनता है, क्योंकि ये बहुत अंडररेटेड है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी। इनका जो क्लासिकल नॉलेज और जिस तरह से इन्होंने क्लासिकल को मेन स्ट्रीम में ला के उसको एक अलग ही दर्जा दिया, ये है वसंत देसाई सर। इनका काम तो मतलब हम नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है इमोशंस को बहुत ही बखूबी ये आगे लेकर आते हैं। कैसे? चलिए सुनते हैं इनकी छोटी सी एक पीस। रंग भरी आई परी, रंग भरी किसने पुकारा, किसने किया प्यार भरा मस्त इशारा। छम 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 नाचे जिया, मौसम तो लहरा के गाने लगा। झूम उठा जहां आई परी, आई परी रंग भरी किसने पुकारा, किसने किया प्यार भरा मस्त इशारा। धनी सा ग प ग सा ग प ध नि सा ध नि सा ध, धनी 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 ध प ध प ग प ग सा ग सा नि ध, धनी सा ग प ग सा प ग। मैं इससे ज्यादा नहीं बजा सकती क्योंकि हमें प्रोग्राम आगे ले जाना है, और अगर मैं ज्यादा सुनूंगी तो शायद रो पड़ूंगी। इतना कमाल काम। और यहाँ तो हमने सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात की है, अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका की नाम हम कई बार लेते नहीं हैं या फिर जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन वही होता है गाइडेड लिसनिंग। एवरी टाइम यू लिसन टू अ सॉन्ग, गेट डीप इनटू इट। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लिसनिंग टू अ सॉन्ग, हाउ इज लिसनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम हियरिंग। आप गाना एक बार सुनते हैं, आपको वो गाने में कुछ एक चीज अच्छी लगती है, आप उसको सुनते हो बार बार, ये समझने के लिए कि आपको वो क्या अच्छा लग रहा है, क्यों एक गाना दूसरे से ज्यादा अच्छा लगता है, या फिर उसमें ऐसी क्या बात है जो आपको दूसरे गाने से ज्यादा अट्रैक्ट करती है। हम दो एग्जाम्पल्स लेंगे हर चीज का, जस्ट टू गेट अ पॉइंट राइट कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। जैसे कि अब ये गाना है बहुत पॉपुलर, कई बार कई लोगों ने सुना है, लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया है ये वाला गाना एब्सोल्युटली रागदारी बेस्ड सॉन्ग है। कैसे? चलिए एक बार सुनते हैं एंड देन वील कम बैक टू इट।
हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। अलबेला सजन आयो री। राग अहीर भैरव। अब सुनिए, राग अहीर भैरव इतना डीप राग है कि उसको जब मेलनकली के हिसाब से यहाँ पे यूज किया गया तो वो डायरेक्ट हमारे दिल पर लगता है। हमारे दिमाग में बस ये आ रहा है नदीम श्रवण ने म्यूजिक बना दिया है, कुछ अच्छा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, वो इलेक्ट्रिक गिटार बज रही है जिसमें कि वो धुन जब आती है इट brings you there, right? That is what the listening capacity does. अब जैसे कि ये गाना, इस गाने में भी अगर हम सुनेंगे तो हमें ना वो एक छेड़छाड़ ऐसा लगता है जैसे कि ना कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ कुछ कह रही है और कितने मधुरता से कह रही है। सुनना चाहेंगे? सितार है, इट इज लाइक अ डुएट विथ लता मंगेशकर्स वॉइस, इजंट इट? ये मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगी, डू नॉट कंफ्यूज विजुअल्स विद मेलोडी. Song should never, yes, there are many songs which is beautiful to look at, but when you are listening to a song, listen to its म्यूजिकल कैपेसिटी. कई बार क्या होता है ना कि गाने बहुत सुंदर होते हैं लेकिन उनकी जो विजुअल्स होती है ना वो पूरी तरह से उसको खराब कर देती है. तो क्या वो खराब विजुअल्स को हम उस गाने के लिए हम उसको पिनलाइज करेंगे? नहीं. यहाँ मैं आपको 2 गाने सुनाऊंगी और ये मतलब हमारी कम्युनिटी में हमने इसको एक टर्म दिया है, एक जार्गन दिया है, BHNS, मतलब बेटर हर्ड नॉट सीन. तो ये जो गाना है ये जयदेव साहब की कॉम्पोजिशन है और क्या ही नायाब कॉम्पोजिशन है. दिस इज प्योर जैज ब्लूज बीइंग यूज्ड. ब्लूज क्या होता है? अब ब्लूज इज अ फॉर्म ऑफ जैज जहां पे की ये वाली जो फ्रेज आती है ना, दिस कम्स वेरी प्रोमिनेंटली इन दैट. सुनिएगा, बहुत से लोगों के लिए पहली बार हो सकता है ये गाना सुनना, लेकिन क्या नायाब हीरा है. अगर पसंद आए तो चैट पे जरूर बताइएगा, जो मैं बाद में पढ़ूंगी. अनफॉर्चुनेटली अभी मैं चैट्स नहीं पढ़ पा रही हूँ. थी फिर भी तकाजा न किया, फिर भी तकाजा न किया. प्यास थी फिर भी तकाजा न किया. जाने क्या सोच के ऐसा न किया, सोच के ऐसा न किया. The whole thing is that कि भैया सबसे बड़ा रुपैया. That is also blues. Blues में इंडियन फिल्म म्यूजिक में इतना काम हुआ है, कभी उस बारे में फिर से बात होगी. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर कनेक्ट करिएगा. अब जो दूसरा गाना है, ये गाने की अगर मैं विजुअल्स आपको देखने बोलूंगी ना, probably you will hate the song और probably you will hate me also for it. बट जो गाना बनाया है, क्या ही बखूबी गाना बनाया है. ये राग जोग पर आधारित है. अब जोग इज ऑल्सो काइंड ऑफ ब्लूज, इंडियन ब्लूज के तरफ जाता है, लेकिन उसकी जो अपनी एक ब्यूटी है उसका क्या ही कहने. सुनिएगा, आंखें बंद करके सुनिएगा, शायद ज्यादा मजा आएगा. ये बर्फानी रातें पिघल जाने दो, पिघल जाने दो.
ये बर्फानी रात में पिघल जाने दो, पिघल जाने दो। शीत लहर सी है सांसों में, आँच मिले तेरी बाहों में। शीत लहर सी है सांसों में, आँच मिले तेरी बाहों में। आज तो हमें जल जाने दो, जल जाने दो, जल जाने दो, जल जाने दो। ये बर्फानी रातें पिघल जाने दो, पिघल जाने दो। कितनी खूबसूरत धुन है। कोशिश भी मत करिएगा इसको जाके विजुअलाइज करने की कि क्या है। वीडियो इज एब्सोल्युटली बकवास, लेकिन गाने क्या खूबसूरत बनाए हैं। अब व्हाट मेक्स अ सॉन्ग ऑब्वियसली इट्स लिरिक्स। अगर हम वो लिरिक्स एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो वो तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन हो जाएगी या फिर सिर्फ वो मेलोडी रह जाएगी। हमारे हिंदी फिल्मों में लिरिक्स का एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि अगर जो मौसीकी है, म्यूजिक जो है, अगर वो जान है गानों की, तो ये आत्मा है। जब तक कि उन गानों में शब्द नहीं भरे जाएंगे, वो कथानक को उसमें पिरोया नहीं जाएगा, वो गाना नहीं बनेगा ना, वो तो इंस्ट्रूमेंटेशन रह जाएगा, सिर्फ मेलोडी रह जाएगी। कुछ गीत जैसे कि ये, मैं पल दो पल का शायर हूँ, मसरूफ जमाना मेरे लिए कोई क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मतलब जब तक ये, अगर आपको ये पता चल जाए कि आप सिर्फ एक जर्रा हैं इस धरती पे, और वो इतने सही सलीके से आपको बताया जाए, तो फिर बात ही क्या है ना। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। ये फिलॉसफी है, ये आध्यात्म है। इसको संगीत में पिरो के इतनी आसानी तक हम तक पहुंचाया गया है, तो इसको सिर्फ हम फिल्म म्यूजिक क्यों बोलें। ये बहुत बड़ी चीज है जो हमारे पास ट्रेजर के तौर पर है। या फिर ये गाना, उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते। मतलब राजेंद्र किशन जी जब ये लिख रहे होंगे, तो उस औरत के दर्द को समझ कर लिखना, वो अपने आप में एक बात है, राइट। और इस फिल्म के जो दूसरे गाने हैं, गम राह में खड़े थे साथ हो लिए, यूं दिल से दिल की बात कही और रो लिए। मतलब जब तक आप उस कथानक को, जब तक आप उस कैरेक्टर को समझ नहीं सकते, आप कैसे लिख सकते हैं ऐसा खूबसूरत गीत। और हमारे लिरिसिस्ट, आई मीन सिर्फ गुलजार साहब या फिर सिर्फ जावेद अख्तर ही नहीं, बहुत बड़ा एक अथाह महासागर है उन लोगों के भी गानों का जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम किया हुआ है। शायद लिरिसिस्ट तक के तो लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं। इमोशंस, ऑफ कोर्स, आई मीन जैसे हमने वसंत देसाई जी के गाने, जब कई बार होता है कि हम गानों को सुनकर रो रहे होते हैं। क्यों रोते हैं? क्या वो हम दुखी हैं? नहीं, दुख नहीं है, ये एक तरीके का अंदर का एहसास है जो जब आता है ना, वो इट जस्ट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। और फिल्मी गानों में उसकी तो क्या ही बात कहें। ये गाना मतलब आई रख के कहिएगा, ये गाना बजते से कुछ एक कसमसाहट नहीं होती, एक अजीब सा, मतलब यू स्टार्ट मिसिंग योर पेरेंट, राइट? That's what it does. उफ, ये समर्पण भाव की तो बात ही क्या करें। अगेन रोशन साहब, यहाँ पे मैं 3 साल की बच्ची
मुझे आज तक वो घर अच्छे से याद है। सामने गार्डन था और वो गार्डन में से वो ना फूल लेकर आते थे पूजा करने के लिए। संडे का दिन था और उठते साथ नहा धो के मेरे को नानी को बोला मेरे को जल्दी से तैयार करें, गर्मी की छुट्टियों में वहां थे। और उठते साथ उन्होंने मेरे को बैठाया पालती मार के अपने सामने और एक कैसेट चलाया जो कि ये रिकॉर्ड हो रहा था और उनका पहला शब्द था, आज हम राग यमन सीखेंगे। और यमन में क्या सीखेंगे ये, और उन्होंने इस लाइन से शुरुआत की। रेगा रेगा मा गरी सा सनी पापा मा रेगा सनी सा ग पा मा पा नित सांझ सवेरे मिलते हैं। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जैसे ही आपके उस गीत के साथ आपकी मेमोरीज, आपकी यादें जुड़ जाती है, वो सिर्फ एक गीत नहीं रह जाता, वो एक मॉन्यूमेंटल मेमोरी बन जाती है। उसको संजो के रखना बहुत जरूरी है। अब भाई ये जो सब्जेक्ट है ना, ये फिल्मी सब्जेक्ट में तो बहुत ही टाबू सब्जेक्ट है। मतलब एक ऐसा जो मुझे ऐसा लगता है सेंसेशनलाइज करने के लिए हमने इसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दिया है। Who doesn't copy? And what is an original? Who knows what is an original? राग यमन तो राग यमन ही रहेगा ना। अगर राग यमन में वो रविंद्र जैन गाना बनाए या फिर संजय लीला भंसाली बनाए, यमन तो वही नोट्स रहेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। कहीं किसी ने कुछ धुन बनाई और उसको अगर यहाँ पर कॉपी कर भी लिया, चलिए मान लेते हैं, हम शुरुआत यहां से करते हैं, बोलते हैं कि चलो कॉपी कर लिया, व्हाट नेक्स्ट? क्या वो एक लाइन की कॉपी से सब कुछ ठीक हो गया या फिर सब खत्म हो गया? ऐसा नहीं है। हम अगर 40s भी देखेंगे, 1940s देखें या 50s देखें, सी रामचंद्र जी की बात हम कर रहे थे, उनके गाने देखे, उन्होंने जब वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस लेकर वो गाना बनाते थे तो वो इतनी खूबसूरती से उसको इंडियनाइज करते थे कि अच्छा लगता था। बाद में जब मीडिया एकदम हर जगह फैल गया, सोशल मीडिया हर जगह आ गया, अच्छा आपको पता है, डिड यू नो, ओ माय गॉड, डू यू नो दिस, ऐसे जो हेडलाइंस वाले जो टाइटल्स के साथ में जो आ जाते हैं ना, वीडियोस, रील्स, दिस इज ओनली सेंसेशनलाइजिंग, टाइटलाइजिंग द सब्जेक्ट। बट एक लाइन कॉपी होने के बाद में उसको जो इंडियनाइज करके उसको अपनाया गया, उसके बारे में कोई क्यों बात नहीं करता? Nobody is saying कि यहाँ कॉपी नहीं हो रहा है या हो रहा है, हो रहा है, कहीं कोई कॉपी कर रहा है, लेकिन उसको कैसे इनोवेट करके, उसको कैसे इंडियनाइज करके प्रेजेंट किया गया, उसको भी तो देखना चाहिए। और कई बार इट्स नॉट जस्ट अबाउट ब्लेटेंट कॉपीइंग, इट्स अबाउट इंस्पिरेशन इन वेरी डिफरेंट वेज। मैं आगे ना आप लोगों को कुछ सुनाऊंगी, वो सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, और अगर आपको वो अच्छा लगता है तो जरूर चैट पे डालिएगा, जो मैं बाद में जरूर पढ़ूंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला जो धुन है, इसके साथ इट्स अ न्यू ट्यून फ्रॉम एन ओल्ड धुन जो कि उन्होंने ही बनाई हुई है। चलिए सुनिए। ऑफ कोर्स, ये जो गाना था हम सब जानते हैं, करीब फिल्म का,
ओरिजिनली जो हमने पहली वाली धुन सुनी थी, जो इंटरल्यूड पीस था, वो अनु मलिक जी का ही बनाया हुआ 1980 की फिल्म है पूनम, उसका वो गाना था आ जरा मेरे हमनशी, इन द वॉइस ऑफ मोहम्मद रफी साहब, जिसके कि इंटरल्यूड को लेके उन्होंने ही अपना एक गाना बना दिया। उसमें कुछ उसको चोरी बोलेंगे? इसको कितना पॉपुलराइज किया गया है, सेइंग कि अनु मलिक ने अपने ही को किसी ने ये नहीं बोला कि उन्होंने अपने ही गाने को चुराया है या अपने ही गाने को रीयूज किया है, लेकिन उसको बता दिया चोरी। अब ये गाना सुनिए। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। मेरे हम सफर मेरे पास आ, मेरे पास आ। ये वाली धुन सरदार मलिक साहब की थी फ्रॉम द मूवी बचपन, मुझे तुमसे मोहब्बत है। उसकी अरेंजमेंट कितनी डिफरेंट है, और उसको जब अनु मलिक, उनके ही बेटे सरदार मलिक जी के बेटे ने जब यूज किया, उसको एक कितनी अच्छी अरेंजमेंट में ढाला। हम एंजॉय कर रहे हैं इस गाने को, राइट? हमें वो मेलोडी अच्छी लग रही है, हमें वो उसकी अरेंजमेंट अच्छी लग रही है, हमें उसमें वो झपताल अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी अनु मलिक तो अनु मलिक है, वो अच्छा काम कर ही नहीं सकते। क्यों? वाई? ये सुनिए। रहे ना रहे हम। सॉरी, ये गाने के बारे में ये है कि इसको हमने हर जगह सुना है, रहे ना रहे हम 11 ट्यून्स इन द सेम मुखड़ा, सेम टाइप, चलो मान लिया, हो गया। उस बारे में बहुत सारी कहानियां आ गई। अब ये वाली कहानी सुनिए। उस गाने की, रोशन साहब के उस गाने के इंटरल्यूड को लेकर उनके बेटे ने क्या कमाल किया है, जरा सुनिए। मोहब्बत का यही हासिल के याद ही बनी कातिल, ख्यालों पर तुम छाए बहुत याद आए। समझ पा रहे हैं, राइट? रोशन साहब के उस इंटरल्यूड को लेकर राजेश रोशन ने, एक फिल्म आई थी मेरे दो अनमोल रतन, उसमें अरशद वारसी हैं और मुकुल देव एंड नम्रता शिरोडकर। फिल्म कब आई कब गई पता नहीं, ये धुन को लेकर उन्होंने ये बनाया, और क्या ब्यूटीफुल मेलोडी नई क्रिएट हो गई। अब जैसे ये वाली धुन, मैं तुझको आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। अब ये वाली जो धुन है ना, ये मेरी फेवरेट है। क्यों है अभी आपको पता चलेगा, सुनिए। देखो छाई रे तुम्हारी, खोई जाऊं मैं दीवानी। देखो छाई रे तुम्हारी, खोई जाऊं मैं दीवानी। आजा मेरी बाहों का सहारा, प्यासी मेरी जवानी, मेरी किसी की जगमगाई तो क्या। फूलों कलियों की बहारें चंचल, ये हवाओं की पुकारें। फूलों कलियों की बहारें चंचल, ये हवाओं की पुकारें। हमको ये इशारों में कहे हम थम के यह घड़ियां गुजारे। पहले कभी तो ना हमसे बतियाते थे ऐसे फुलवार। अब आप बोलेंगे ये किसने किसको कॉपी किया, तो भाई इसकी कहानी ये है
राम लक्ष्मण, इनका तो नाम आपने सुना होगा, द म्यूजिक कंपोजर। ये एक इंसान नहीं है, ये दो लोग थे। और जो पहला वाला हमने गाना सुना जो आशा जी की आवाज में था, वो उनकी पहली फिल्म से था, एजेंट विनोद। अब हुआ ये कि एजेंट विनोद के रिलीज होने के पहले ही सुरिंदर, जो सेकेंड हाफ ऑफ राम लक्ष्मण थे, उनकी डेथ हो गई। वो फिल्म रिलीज हुई, चली नहीं चली, दैट इज अनदर थिंग। फिर 90s में जब राम लक्ष्मण साहब, जो कि विजय पाटिल जी, उसी नाम से उन्होंने कंटिन्यू किया, राम लक्ष्मण नाम से, उन्होंने जब हम आपके हैं कौन में इस धुन की बात की, तो उन्होंने अपने दोस्त को ट्रिब्यूट देते हुए इस गाने को यूज किया है। तो क्या आप इसको चोरी बोलेंगे? नहीं, लेकिन ये कहानियां आप तक सही तरीके से कौन लेकर आ रहा है या कैसे सुनाई जा रही है, आपको ऐसे गॉसिप के तौर पे सुनाई जा रही है या फिर उसको समझकर उनसे सीखने के हिसाब से सुनाई जा रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट। वी डोंट वांट, आई मीन यू नो, देयर इज इनफ ब्रेकिंग न्यूज happening across the world. We don't want breaking news. We want to get into the story to understand why this is happening, for what reason. अब ये तो हो गई सिर्फ मेलोडी की बातें, और भी बहुत सारी चीजें हैं फिल्मी गानों में। अरेंजर्स, अब आप मुझसे पूछेंगे भैया ये कौन सी चिड़िया का नाम है। आज शायद हम अरेंजर्स के बारे में उतना बात नहीं करते हैं। म्यूजिक अरेंजर्स हैव बीन द बैकबोन, दे आर एक्चुअली द इंटीरियर डेकोरेटर्स ऑफ द सॉन्ग। से फॉर एग्जाम्पल, दिल दीवाना, तंग बिन सजना के तंग माने ना, वो जो एक टंग है, दैट इज एन अरेंजर्स वर्क। या फिर दिस वन, रोज रोज आंखों तले एक ही सपना चले, रात भर आंचल तले, ला 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 ला। Oh, this one small piece, that is the magic of an arrangement. That is a magic which has been retained in the song. ऐसे ऐसे नायाब काम हुए हैं। एंथनी गोंजाल्वेस हो, सेबेस्टियन डिसूजा हो, मनोहरी सिंह हो। You got to get inside the scene, behind the scene, to know why that actual song is the way it is. It's not just about one star who's there on the screen. Musicians, of course, I mean, I'm sorry, it just says decorators. No, they are not. They are actually the strength of a song. They are the ones who have been giving the, आप सिर्फ एक आवाज सुनिए और उसके पीछे जो बज रहे हैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स सुनिए। आज क्यों ऐसा है कि जब हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो हमें सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर याद रहता है? ऐसा नहीं है। उस म्यूजिक डायरेक्टर ने एक एक इंस्ट्रूमेंट पीस को उस इंसान को डेलीगेट किया है, एंड दैट इज हाउ इट हैज बिकम द वे इट इज। Isn't that amazing? Technicians, oh my God, why can we not talk about them? There are people, starting from the managers who has had the calendars of the stars with them, to the programmers who are working behind the scene, on the deck, on the console, giving the right kind of technical support. Sound recordists, इनकी तो कभी कोई बात ही नहीं करता। Soundsmiths हैं ये। They are the people who are unsung heroes. आप उस गाने को जब आप एंजॉय करते हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, कभी भी आप जब गाने सुने, अच्छे वाले ऑडियो सिस्टम के साथ सुने या फिर हेडफोन्स के साथ सुनिए। आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 या 4 लेयर तक की आवाजें अच्छे से सुनाई देती हैं। उन आवाजों को सुन के जब आप डिकोड करने की कोशिश करते हैं, आपको minutest of the instrument भी आवाज आती है। That is a work of sound recordists like Avinash Vyas, I forget his name. Avinash Vyas, right? I'm sorry, I'm getting the name wrong, I guess. Then we have Meenu Kartak ji. You know, these people have created magic, and still there are people who are so much doing good works. इसलिए अभी जो हमने देखा, ये तो सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगली बार जब आपसे कोई बोले फिल्म म्यूजिक है, तो ये मत बोलिएगा कि सिर्फ फिल्म म्यूजिक है। Why? Because it's a perfect combination. It's an amalgamation of art, science, technology and commerce. तो बस अगर आपको ये अच्छा लगा और ऐसी कम्युनिटी आप ज्वाइन करना चाहते हैं where you like to talk about music, you like to deep dive into the
details of film music in the right manner, please connect with our team members. मैंने आपको उनके numbers दिए हुए हैं, या फिर आप मुझसे भी connect कर सकते हैं through my handles which are there in the Rise platform. Or we have, I think there is a lounge facility as well, right? And we would love to discuss. We'll figure out a time when I can be available and I can come there. If you have any queries, would love to discuss on that. So yeah, that's it from my side. Anything anyone wants to share? Anyone has any queries? More than happy to take questions. So this is the time, we have just a few minutes left for the session to end. So if you have any questions, you can put it up in the Q&A segment, which you can see on your screen. It'll be easier for us to track that. Kalpana, has been like, amazing feedback coming in on the chat. Thank you. Truly fascinating. I think you have led us through a parallel history of India post-independence through the medium of Hindi film music. मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई भी हिंदी फिल्म म्यूजिक को belittle करेगा. And like you said, they listen to music rather than just hear it. So thank you so much. That in depth, I mean, I've heard you so often, but this was like amazing to have you for a full 90 minutes and, espousing on the various nuances of Hindi film music. And which I'm sure is true with any music in this country, any language. I think the same Absolutely. level of complexity is available. See, this is a deep dive. I mean, right now what we saw is just not even the surface level. Why? Because, 2 hours have gone by. I've been constantly talking, and unfortunately, I couldn't see the chats while tapping, saying, because, otherwise the windows were getting messed up. So I really miss that. I would have loved to have a live interaction with members. If anyone has any query, please, this is the time, and we have a few more minutes, I guess, before we wind up. Yeah. So any queries, any questions? I think the Q&A segment would be, Hema Ganchari, of course, says, super amazing session. Thank you so much. Yes, of course. Thank you so much. No two ways about that. Brilliant is not the word. Thanks, Naresh. Thank you so much. And thanks to this platform that, I was actually skeptical, I have taken up the subject, but there are serious discussions happening on many agenda, many forum, many segments. And I said कि मैं उस सब के बीच में ये गाने बजाने के लिए आ रही हूँ, तो पता नहीं how will people take that, but I'm absolutely happy to see the response, and I'm happy that people have. Is there a Q&A? Super. Thank you so much.